Lecture number 10, Business Law, and we have already started with the fourth module, that is the Negotiable Instruments Act, in which in the last lecture we have already covered provisions with in respect of a promissory note. Now going further, I have told you, I again repeat, फिर से एक बार बोलता हूँ, फोर्थ मॉड्यूल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपको खाली तीन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है. नंबर वन, प्रॉमिसरी नोट, जो लास्ट लेक्चर में हुआ था. देन नेक्स्ट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज दैट वी डू टुडे, एंड चेक देखते हैं कितना होता है. तो ये तीन के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. नाउ सी बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. हमेशा पॉइंट्स में बोलता हूँ तो आप पॉइंट्स में लिखो. आई विल ऑल्सो अपलोड द पिक्चर्स एज यूजुअल. Point number one, bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. So negotiation instrument में तो बेसिक है कि कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता, it must be unconditional. Then second point, it must be signed by the maker, जो ड्रॉवर है उसने साइन किया होना चाहिए. And next point, directing a certain person to pay a certain sum of money only, again with respect to that payment will be only money only, or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So देखो, A ने bill of exchange ड्रॉ किया, he has directed B. तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन हुआ? A हुआ. ड्रॉई कौन हुआ? B हुआ. और A ने B को, अभी देखो A और C का कुछ हिसाब है, थर्ड पर्सन नॉट कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, but A has to give some money to C. So now what A does कि इसके पास से जो पैसे आने वाले हैं वो सीधा आप C को दे दो. So now he draws a bill of exchange and directs B that you make the payment. ये bill of exchange में समझो 10,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है, ये 10,000 आपको पेमेंट करना है टू C. देखो समझ में आया? A is drawing a bill of exchange, तो वो ड्रॉवर हो गया. By that bill of exchange is drawn against B. And he is directing B, A is directing B that make a payment of rupees 10,000 on or so date, या कभी कभी डिमांड रहता है, उसके टाइप्स हम लोग बाद में देखेंगे. So A is directing B that you make this payment to C. तो C becomes the holder in due course या payee. See, the payee and drawee can be the same person. तो A एग्जाम्पल को ट्विस्ट करो. A can draw a bill of exchange on B and direct B that you make payment to A only, to make payment to me only. So यहाँ ये केस में क्या हुआ, ड्रॉवर जिसने ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है वो A है, he is directing B, so ड्रॉई B हो गया, and he is directing B to make payment to himself. So यहाँ पे the drawer and the payee can be one and the same person. Okay, let us read the definition once again. Bill of exchange, an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. See, negotiable instrument का वो तो सबसे बड़ा खासियत है that it is always transferable. तो A ने B को ड्रॉ किया, A ने B के ऊपर ड्रॉ किया, B ने C को दिया, then C has transferred it to D, D has transferred it to E. तो यहाँ पे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो हो गया E. C, A ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया B के अगेंस्ट और डायरेक्शन दिया दैट यू हैव टू मेक पेमेंट टू C. अभी C ने क्या किया, वो D को दे दिया, सो D इज रिप्लेसिंग C. And now what D is doing? D is again giving it to E. So on that fine day when that payment is due, that negotiable instrument, that bill of exchange is in hands of E, and he becomes holder in due course. E is neither the drawer, neither the drawee, nor the payee, but he is holder in due course. So he gets a right to receive money on that day. Negotiable instrument का तो वो सबसे बड़ा खासियत है कि वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए. Okay, now see the essentials, characteristics, features, merits. Answer will be same. So essentials of a bill of exchange. Now see what are the essentials of bill of exchange. Number one, parties. कितने पार्टीज है?
तीन पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई. A bill of exchange has three parties. A, the drawer who draws a bill. Then दूसरी पार्टी होती है B, जो ड्रॉई who has to make the payment. And third party है C, the payee who is entitled to the payment. And as I told you, sometimes the drawer and payee can be one and the same person. So A can draw a bill. Again थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन आ जाए उसमें. अगर किसी के मन में कुछ डाउट है आप वो भी क्लियर हो जाएगा. ए ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है तो ड्रॉवर कौन हुआ? ए हुआ. ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है ऑन बी, डायरेक्टिंग बी टू मेक पेमेंट. तो यहाँ पे ड्रॉई कौन हो गया? बी हो गया. एंड ए हैज़ डायरेक्टेड बी टू मेक पेमेंट टू सी. तो सी कौन हो गया? सी बिकम्स द पेई, कि उसको पैसे मिलने चाहिए. देन वी डिस्कस दैट एग्जाम्पल के सी ने डी को दे दिया. सो नाउ सी इज रिप्लेसिंग डी. तो जो दिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू हो जाएगा फॉर पेमेंट, इट इज डी हु विल गेट द राइट. एंड एट सम टाइम्स drawer and payee can be the same person. So A can draw a bill of exchange directing B to make payment to A only, कि मालाच पैसे दो, मुझे ही पैसे दो. That is also fine. So drawer and payee can be one and the same person. It is still a bill of exchange. So तीन parties होते हैं. First point. Second point, it must be in writing. See, basically negotiable instrument है और negotiable instrument oral होता ही नहीं है. It must always be in writing. इट मस्ट बी इन राइटिंग. इट कैनॉट बी इन एनी अदर फॉर्म के ईमेल किया, ये किया, वो किया. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं चलता है. इट मस्ट बी इन राइटिंग. नेक्स्ट, थर्ड, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. दिस इज एसेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. देयर मस्ट बी एन ऑर्डर बाय द ड्रॉवर टू द ड्रॉई टू पे. सो यहाँ पे ए बी को डायरेक्ट कर रहा है कि तुमको पेमेंट करना है. सो इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. The order must be command and not an request. Command, I order you to pay. तो ही एक्सेप्ट होगा वो. Then next, तो उसका एग्जाम्पल देख लो. B pays ₹500 to C. और ऑर्डर अगर ऐसा लिखा होगा that pay C ₹500 on सो एंड सो डेट लिखा रहेगा तो वो डेट पे होता है, या ऑर्डर. तो जब भी वो डिमांड करेगा, नोटिस देगा कि मुझे पेमेंट करो, वो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, फोर्थ रिक्वायरमेंट, फोर्थ इसेंशियल, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. कोई भी कंडीशन के ओके ऑर्डर ए ऑर्डर्स बी टू मेक पेमेंट प्रोवाइडेड इंडिया मैच जीत जाए, प्रोवाइडेड नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रोवाइडेड राहुल गांधी का भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए. दीज काइंड्स ऑफ कंडीशंस आर नॉट accepted. It must be unconditional. Order must be unconditional. The order to pay must be unconditional. In other words, the happening of the condition must be certain. बारिश गिर गई तो दूंगा, गर्मी ज़्यादा हुई तो नहीं दूंगा, ये सब चीज़ें नहीं चलेगा. इट मस्ट बी अ सर्टन इवेंट विच इज़ मोस्ट लाइकली नहीं, इट इज़ वेरी श्योर टू हैपन. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर टू पे मनी ओनली. So now see, understand this thing. Negotiable instrument basically is for payment of money only. So वहाँ पे पैसे का ही हिसाब होना चाहिए. And mention must be of money and money only. कोई भी अदर आर्टिकल गुड्स अगर उसमें ऐड हो गया या कुछ और चीज़ ऐड हो गया तो that will not be a valid negotiable instrument. और negotiable instrument नहीं रहेगा तो ना वो promissory note हो सकता है, ना ही वो bill of exchange हो सकता है, and neither it can be a check. That we will see subsequently. नेक्स्ट, 6, द सम पेएबल मस्ट बी सर्टन. ये तो तीनों जगह पे सेम ही रहेगा. दैट द सम टू पे मस्ट बी सर्टन. ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता है दैट ए डायरेक्ट्स बी दैट आई ऑर्डर यू टू पे रुपीज से फॉर एग्जांपल 10,000 और 15,000 टू बी. तो 10,000 या 15,000, देयर मस्ट बी अ सर्टनिटी. द अमाउंट मस्ट बी फिक्स, इट मस्ट बी सर्टन. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, 7th वन, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन. जो आपने ये लिखा था ना रिक्वायरमेंट्स ऑफ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वही रिपीट होंगे सबके सब. खाली
अपने अपने तरफ से, मतलब बिकॉज ऑफ द टाइप के वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ेगा, बट बेसिकली इट मस्ट बी अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब रिपीट होने वाले ही है. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड. बिना साइन के बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक का कुछ मतलब ही नहीं है. नेक्स्ट 8th, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बेयर द स्टैम्प. तो जो रिक्वायरमेंट होगा कि कितने का स्टैम्प लगता है वो स्टैम्प वहाँ पे लगाना पड़ेगा. देन 9, एनी अदर फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लाइड विद. और भी अगर कुछ फॉर्मेलिटी है जैसे कि एक्सेप्टेंस. अभी देखो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, वो एक्सेप्ट होना चाहिए. अभी प्रॉमिसरी नोट जो है और चेक जो है उसका साइन नहीं लगता है एक्सेप्टेंस का, क्योंकि वो देने वाले की जिम्मेदारी है, दैट इज सफिशिएंट. लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी आप किसी और पे थोप रहे हो. यू आर पुटिंग दैट लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑन सम अदर पर्सन, सो ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट. तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा. सो नाउ से बिल ए हैज़ ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट बी and directed B to make payment to C or A himself. So B must accept that bill of exchange in what you can say acknowledgement. तो वो acknowledge नहीं करेगा कि yes I accept, तब तक वो valid नहीं होगा. Next 10 number, intention and delivery must be satisfied. So intention कि आप पैसे दो और delivery that promissory note, not promissory note sorry, जो bill of exchange है उसको करके घर में नहीं रखना है या अपने फाइल में नहीं रखना. यू हैव टू सर्व इट, यू हैव टू गिव इट टू द पर्सन जिसके अगेंस्ट वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है. एंड 11, ये रिक्वायरमेंट हर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा आगे से, दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर. रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर. ओके, स्पेसिमन तो बहुत ईजी होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बना के आंसर को लंबा करते हैं. कुछ नहीं होता है, खाली डेट समझो थाने में बना रहे तो थाने, देन डेट आज का, तो आज सपोज टुडे इज 8th September, सो 8 September 2020. एंड देन वहाँ पे आता है उसका पर्टिकुलर्स 6 months आफ्टर द डेट पे टू ए और पे टू सी. अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वही देखते हैं. ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है 6 months आफ्टर द डेट, या वहाँ पे डेट लिखा भी जाएगा कि ये तारीख ऑन और बिफोर. पे टू सी और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. 2, यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा. सो इफ ए इज ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट बी, तो वहाँ पे बी का नाम आएगा. 2 मिस्टर बी, उसका एड्रेस, स्टैम्प एंड साइन. देन इट हैज़ टू बी साइंड बाय द मेकर, तो ए का वहाँ पे साइन आना चाहिए. सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, नॉट मच टू मच टेक्निकलिटीज इन दैट. ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया क्या है. नाउ गोइंग फर्दर, काइंड्स और टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. के बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स होते हैं, क्या प्रकार होते हैं. नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड. तो कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड, अगर सामने वाला डिमांड करेगा तो ही मिलेगा. नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर डेट. वो डेट लिखा रहेगा दैट पे आफ्टर सो एंड सो डेट, तो वो डेट के बाद में पेएबल हो जाएगा. देन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, जो इंडिया के अंदर ही चलता है. देन नेक्स्ट फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो एक पार्टी यहाँ बैठी है, एक पार्टी दूसरे कंट्री में बैठी है, तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी रेज होते हैं. देन 5th इज एकोमोडेशन बिल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन बिल इन सेट्स एंड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. सो ये सब छोड़ दो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग. बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड. देन सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर डेट. एंड थर्ड, इनलैंड. उतना आप लिखो एग्जाम में तो भी बहुत हो गया. ओके, नाउ सी एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टेंस. मैंने अभी आपको बताया दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड. जैसे प्रॉमिसरी नोट हमने देखा, प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प पेपर पे होता है और वो प्रॉमिसर ही साइन करता है. सो वो प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी पेई की या होल्डर इन ड्यू कोर्स की नहीं है. लेकिन यहाँ पे द ड्रॉई हैज़ टू एक्सेप्ट इट कि यस आई एक्सेप्ट. सो देखो एक्सेप्टर, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टर. द ड्रॉई, once he accepts to make the payment on the bill stated, he is called as the acceptor. So A ने B को डायरेक्ट किया है कि आप C को पेमेंट करो, this is fine, but B has to accept that.
तो बी एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में ही वो पेई बन जाता है. इट इज हिज लाइबिलिटी नाउ टू पे दैट अमाउंट. ये मैंने जिम्मेदारी उठाई. एक्सेप्टर का डेफिनेशन देखो. आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल, or if there are more parts thereof than one part upon such parts, and delivered the same, or given notice of signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor. तो ड्रॉई जब भी एक्सेप्ट करता है या मैसेज भेजता है कि वो क्या है, साइंड इट, देन ओनली बिकम्स एन एक्सेप्टर. देन सी रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस. व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग. ओरल एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन. रिटर्न भी होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए. सो मियरली साइनिंग विदाउट एनी वर्ड्स इज ऑल्सो इनवैलिड. इट मस्ट बी हैविंग अ क्लियर कट इंडोर्समेंट. एक वहाँ पे रिमार्क होना चाहिए, येस आई डू एक्सेप्ट, आई डू हियर बाय एक्सेप्ट या डूली एक्सेप्ट, जो भी रहेगा चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट or qualified. Acceptance may be absolute or qualified. So conditional to some extent चलता है. Then third, acceptance is complete only by delivery to the holder or by giving him notice of acceptance to the holder. So acceptance किसको देना चाहिए? On delivery to the holder or by giving notice of the acceptance to the holder. And fourth rule, where the bill has several drawings, all are required to accept. तो अगर 4 लोगों के खिलाफ निकला तो चारों ने एक्सेप्ट करना चाहिए. 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो. ओके, देन सी एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन promissory note and bill of exchange. डिस्टिंग्विश बिटवीन promissory note and bill of exchange. तो उसके पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए. मैं पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड जो डिफ्रेंशिएशन का आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो वो क्वेश्चन आपको 2 कॉलम में ही लिखना है. वो प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा होता है और पढ़ने वाले को भी वो अच्छा पड़ता है. आप ऊपर नीचे पॉइंट लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होएगा. सो ऑलवेज उसको हाफ में डिवाइड करो. एक साइड अभी समझो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रॉमिसरी नोट है, तो लेफ्ट साइड में प्रॉमिसरी नोट और सेकंड साइड में, राइट साइड में बिल ऑफ एक्सचेंज. देन पॉइंट चाहिए तो आप बीच में लिखो ताकि दोनों का पॉइंट तो सेम रहेगा जो भी आप पॉइंट डील कर रहे हो. एंड देन उसका डेफिनेशन, जो भी कुछ डिफ्रेंसिएशन है अपने अपने कॉलम में लिखो, तो प्रेजेंटेशन को भी वो अच्छा दिखता है, पढ़ने में भी आसान होता है एंड पास होने में भी आसान हो जाएगा. ओके, नाउ सी व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. नंबर 1, पार्टीज. प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होते हैं, द मेकर और प्रॉमिसर, एंड सेकंड द पेई और प्रॉमिस. तो ए प्रॉमिस कर रहा है बी को पैसे देने हैं, तो 2 ही पार्टीज होते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज, देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. एट सम टाइम्स ड्रॉवर और पेई एक पर्सन हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो अलग हो सकता है. सो 3 पार्टीज होते हैं. सो नंबर ऑफ पार्टीज प्रॉमिसरी नोट में 2 होते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 होते हैं. नेक्स्ट, नेचर ऑफ पेमेंट. इट कंटेन्स, द प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे. वचन चिट्ठी, मैं प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस टू पे. और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर, ए ऑर्डर्स यू टू पे. तो वहाँ पे आपको वो ऑर्डर दिया जा रहा है. सो यहाँ पे प्रॉमिस है, वहाँ पे ऑर्डर है. सो उसका जो ये है नेचर है वो अलग है. यहाँ पे प्रॉमिस है और वहाँ पे ऑर्डर है. देन बिल ऑफ एक्सचेंज, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, नॉट प्रॉमिस, ऑर्डर. देन नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस. It is payable by person who makes it. Therefore, no acceptance is necessary. मैं प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा हूँ और मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ आपको कि मैं आपको पेमेंट करूँगा, तो एक्सेप्टेंस का जरूरत है ही नहीं. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, यू आर डायरेक्टिंग द ड्रॉई, ड्रॉवर ड्रॉई को बोल रहा है, तो यहाँ पे समझो 3 पार्टीज है. सो ए इज डायरेक्टिंग बी
दैट यू मेक पेमेंट टू सी, तो ये बेसिकली बी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो प्रॉमिसरी नोट बनेगा. ओके, सो एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रॉमिसरी नोट. देन कमिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज, it is payable by other person directed, therefore it must be or it should be presented to the drawee for acceptance, and it must be accepted conditionally. It may be accepted conditionally. So acceptance very very important for bill of exchange. To promissory note, acceptance not required. Next, fourth point, liability. अभी promissory note में लिख के दे रहा हो तो मेरा ही liability है, और वहाँ पे कैसा है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है बी पे, लेकिन लाइबिलिटी किसका है, बी का है, टू मेक दैट पेमेंट. सो लाइबिलिटी इज ऑफ अनदर पर्सन. द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज प्राइमरीली एंड एब्सोल्युटली लायबल टू पे. प्रॉमिसर स्टैंड्स इन द इमीडिएट रिलेशन टू द पे. खुद का ही प्रॉमिस है. यहाँ पे मेकर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरीली एंड कंडीशनली लायबल टू पे. तो अगर समझो कल बी ने प्रॉमिस तोड़ दिया, ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला कि आप सी को पेमेंट करो, एंड बी फेल्स टू डू दैट, तो ए का लाइबिलिटी आएगा. अगर बी ने अपना प्रॉमिस ऑनर किया तो ए का लाइबिलिटी नहीं आएगा. सो उसका लाइबिलिटी सेकेंडरी है. मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज secondarily and conditionally liable to the payee. He becomes liable only when the drawee refuses to honor the bill. तो अगर बी ने कल वादा फरमाशी किया, उसने अगर वो पैसे नहीं दिए तो ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी. देन ड्रॉअर स्टैंड्स एन इमीडिएट रिलेशन टू द ड्रॉई और एक्सेप्टेंस एंड नॉट द पे. सो ए और बी का कुछ रिलेशन है, बी और सी का कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन बी बिकम्स लाइबल टू पे टू सी. देन नोटिस. बिल इन केस ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड. डिसऑनर अगर हो गया तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है. इन केस द नोट इज डिसऑनर, द प्रॉमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी टू द मेकर. लेकिन इन केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू ऑल पार्टीज लायबल ऑन द बिल. तो अगर समझो सी को बोला है प्रॉमिस करने का, ये क्या है, डायरेक्शन ए हैज़ ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी एंड डायरेक्टेड सी टू मेक पेमेंट. अगर बी गया डिमांड किया, सी गया जो पेई है और उसने डिमांड किया बी से, कह रहे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज है और आप मेरे को ऑनर करो एंड यू मेक मी दिस पेमेंट. बी ने रिफ्यूज़ किया, नहीं करूँगा, जाओ. सो यहाँ पे क्या होगा, सी हैज़ टू गिव नोटिस टू बोथ, टू बी ऑल्सो एंड टू ए ऑल्सो. So notice is required. Then 6th point, maker as payee. A note cannot be made payable to the maker. Promissory note cannot be made payable to the maker. जो पॉइंट हमने बोला था ना कि कभी कभी ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन होता है. सो ए बी को बिल ऑफ एक्सचेंज निकाल सकता है एंड कैन डायरेक्ट बी दैट यू मेक पेमेंट टू मी ओनली. तो यहाँ पे ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन है. लेकिन प्रॉमिसरी नोट में मैं प्रॉमिसरी नोट लिख के दे रहा हूँ तो मैं खुद को पैसे देने का प्रॉमिसरी नोट नहीं लिख सकता हूँ. सो वहाँ पे नोट कैनॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर. तो खुद को ही पैसे देने तो प्रॉमिसरी नोट देने का जरूरत क्या है. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, द ड्रॉवर एंड पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन. सो दिस इज अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज. गोइंग फर्दर, नेक्स्ट सब टॉपिक, चेक. अभी चेक क्या होता है सबको मालूम है, कभी ना कभी तो किसी ने चेक देखा है, कभी ना कभी किसी ने चेक साइन किया है, या किसी का चेक कोई किसी को दे रहा है ये देखा हुआ है. अभी तो चेक भी बहुत पुराना हो गया, अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का नया ज़माना है. लेकिन सपोज मुझे पेमेंट करना है टू अ पार्टी इन पुणे, सिचुएटेड इन पुणे, एंड पेमेंट मुझे करना है 20,000. तो फिजिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर पैसे ही देने हैं इन कैश तो मुझे 20,000 यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा, जो खतरे से खाली नहीं है. ट्रेन में, बस में, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, डिफ़िकल्टी है इतना कैश लेके जाना. कभी कभी कुछ हो गया, लूटपाट हो सकता है, गुम हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए चेक इज़ ऑलवेज बेटर. तो चेक अगर आप यहाँ से कुरियर से भेज दो तो भी हो जाएगा, या वहाँ पे जब भी आप साइन करो तो उसको चेक पहले ही दे के रखो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. तो चेक का देखो क्या होता है ना, चेक इज़ मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, कैश कैरी नहीं करना पड़ता है. एक पीस ऑफ पेपर है जो साइन होता है, चेक आपने देखा होगा,
वो साइन करके दे दो, दैट इज सफिशिएंट, उसको बैंक में जमा करो, आपके पैसे जमा हो जाएंगे। नाउ सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ चेक। अभी जो चेक होता है ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन दैट चेक इज ड्रॉन ऑन इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ फिक्स बैंकर। सो ड्रॉई जो होता है ना वो हमेशा बैंक होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। अभी देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने के लिए फॉर ऑनरेरियम, तो वो मेरा जो मानधन है वो मुझे हर महीने टू महीने जब भी लेक्चर्स होते तभी मिलता है समझो। तो अभी ये महीने का हिसाब हो गया, कितना लेक्चर्स हुआ है वो काउंटिंग हो गया, एंड अकॉर्डिंगली मेरा चेक निकला। नाउ सी चेक का ड्रॉवर कौन है, ग्रामीण शिक्षण संस्था। तो उनका ये रहता है कि वह कम से कम 2 ट्रस्टीज़ का साइन होना चाहिए। तो 2 ट्रस्टीज़ का साइन हो गया, जितने हैं उसमें से 2 का साइन होना चाहिए, या 3 सिग्नेटरीज होते हैं उसमें से 2 होने चाहिए, तो दोनों का साइन हो जाता है, एंड दैट चेक इज इन माय नेम। वो चेक पे नाम मेरा है क्योंकि वो पैसे मुझे देने हैं, और वो जो चेक है ना दैट इज ड्रॉन ऑन देयर बैंक। अभी ये अपना कॉलेज जो है उसका अकाउंट जीपी पार्सिक लिमिटेड बैंक में है, जो अपना इधर है ना कापुरपौड़ी का जो ये है लेक सिटी मॉल, उधर ही आता है। वो जो स्टार सिनेमा है ना उसके ही नीचे वो कॉम्प्लेक्स, वो जो कमर्शियल ये है प्रीमाइसेस है उसमें ही आता है। सो देखो अभी यहाँ पे ड्रॉवर कौन है ग्रामीण शिक्षण संस्था, ड्रॉई कौन है जीपी पार्सिक बैंक, और पेई कौन है मैं हूँ। सो यहाँ पे फिक्स बैंकर होता है, पेई जो होता है ना इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, तो बैंकर इज ऑलवेज अ पेई इन केस ऑफ अ चेक। सी डेफिनेशन ऑफ अ चेक। Section 6 defines check as a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of truncated check and a check in electric form। वो फिलहाल भूल जाओ। सो ये चीज़ आप इतना याद रखो एग्जाम में लिखने के लिए। व्हाट इज़ अ बिल ऑफ, व्हाट इज़ अ चेक, पॉइंट नंबर 1, check is a bill of exchange drawn on a specified banker, and second point, not expressed to be payable otherwise than on demand। इतना याद रखो तो भी बहुत हो गया। then essential characteristics of check, then types of check, सुना होगा bearer check या cross check, account payee check। so वो types पहले तो essential characteristics देखेंगे, अराउंड 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन टाइप्स ऑफ चेक, एंड देन फाइनली चेक और बैंक का भी डिस्टिंक्शन हमको करना है, एंड देन फॉलोड बाय प्रोविजंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। यहाँ पे आपका 4th मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। 4th मॉड्यूल इससे मैंने पहले लिया है कि रिलेटिवली छोटा है, रिलेटिवली ईजी है और स्कोरिंग भी है। तो अगर 1 फुल लेंथ क्वेश्चन आप उस पर अटेम्प्ट करो तो, या 2 भी आप अटेम्प्ट करो तो 20 मार्क्स का पोर्शन आपका कवर हो जाता है। सो देखो प्रॉमिसरी नोट डन, बिल ऑफ एक्सचेंज डन, एंड चेक हमने स्टार्ट किया है। तो चेक में वी हैव ओनली सीन द डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्लिक फीचर्स, ऑब्लिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ चेक, देन टाइप्स ऑफ चेक, एंड देन फाइनली डिसऑनर ऑफ चेक। सी चेक कभी कभी आप बैंक में जमा करते हो, पैसे नहीं होते तो चेक वापस आ जाता है, उसको लेमैन लैंग्वेज में चेक बाउंस हो गया बोलते हैं, बाउंस ऑफ अ चेक। तो बाउंस हो गया मीन्स क्या, बिना पेमेंट के चेक वापस आ गया। तो दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।